Welcome to my channel Biohealth Academy students. Today we will do nucleic acids. So we will do DNA, structure of DNA. Yeah, starting with the nucleic acids. Let's see. Yeah, so you see that in the plus one class you have done a chapter biomolecules. Yeah. So in this biomolecules you have done micromolecules and macromolecules. Micromolecules polymerize to form the macromolecules. Most of them they polymerize by condensation and then they form the macromolecules. So micromolecules are small sized and macromolecules are large sized. So micromolecules are just behaving as monomers, and many of them they combine together to form the big molecule called as polymer. And you have done that when nucleotides polymerize, they form the polynucleotide chains, and polynucleotide chains are nothing but the nucleic acids. They are called as nucleic acids, polynucleotide chains. Matlab many nucleotides get polymerized to form the big chains called as polynucleotide chains. So now our topic is this. So we have to know what are polynucleotide chains, how they are formed, what are the structures which form them. So now let's do this. So now these nucleic acids, so they are of two types. One is DNA and the other is RNA. So we have heard this. So then full form of this is deoxyribonucleic acid. Yeah, so ribonucleic acid, and this is called as only ribo, deoxy word nahi aayega, ribonucleic acid. So we can name it as like this also, ribose nucleic acid, because R stands for ribose. So in the short form we call it ribo. Similarly here you can call it deoxyribose nucleic acid. So what is this deoxyribose and ribose? These are sugars. Yeah, so pentose sugars, 5 carbon sugars. So then so we will little bit we will do this. So this is the DNA. Now what is this DNA? This behaves as genetic material in most of the organisms. So maximum organisms, so they have genetic material DNA. And secondly, yeah, so it is the molecular basis of, inheritance. Yeah, so this is the chapter name also. uh, this chapter is also having the same name, molecular basis of inheritance. So therefore DNA is the molecular basis of inheritance, that is it is the structure which carries the characters from the one generation to other generation. So then what about RNA? RNA commonly behaves as messenger. Yeah, so it commonly behaves as messenger. So that is why we call it messenger RNA. And then, so it also acts as adapter molecule. Yeah, so it is adapter, so molecule. So this is also called as transfer RNA. We will do the structure of this also. Or it is also called as soluble RNA, small s RNA. Thirdly, so it behaves as a structural RNA when it forms a ribosomes. Then it is called as ribosomal RNA. So that is small r RNA. So it forms a ribosomes along with the proteins. So it becomes a part of the ribosomes. And then so this RNA, yeah, so maybe also acting as catalytic, so molecule. So it may have the catalytic function. Yeah, so that is, it behaves as enzyme. Yeah, so you must have heard the name of the enzyme ribonuclease. Ribonuclease. So this is catalytic function. Then sometimes in some viruses, it acts as genetic material. So only few viruses have RNA as genetic material. Can we name them? So it is HIV. So that is AIDS virus. And then so it is herpes virus, papilloma virus. So it is plants में tobacco mosaic virus. So like that, it is measles virus, mumps virus, measles, mumps, polio,
And so all these are the RNA. In them, RNA is the genetic material. Now, nucleic acid is a polymer of nucleotides. If I write like this, so nucleotides indefinite number, they get condensation, that is polymerization. So then, so this nucleic acid is formed. That is polynucleotide chain will be formed. Polynucleotide chain, yeah, so is formed with a lot of water molecules removed. Yeah, so this is what condensation is. So a lot of water molecules are removed. So therefore nucleotide, if I denote nucleotide as an nucleotide and indefinite number of nucleotides, they combine together in a chain and they form the polynucleotide chain. Now what is the structure of this nucleotide? Nucleotide itself is a polymer of the monomers. Yeah, so 3 monomers. Nucleotide is made up of 3 structures. What are these 3 structures? One is nitrogenous base. Second is pentose sugar. And third is phosphate. Now these are 3 structures, monomers, of which a nucleotide is made up of. So now nitrogenous base is what? So it is the heterocyclic nitrogen containing compound. Heterocyclic nitrogen containing compound. And नाम से ही पता चलता है कि it is basic in nature. So basic nature है इसकी, और इसकी अभी डिटेल करेंगे. और पेंटोज शुगर जो है, सो वो अपने मोनोसेकेराइड्स में शुगर्स की हैं, ठीक है. तो इट इज 5 कार्बन शुगर है, सो 5 कार्बन शुगर, सो पेंटोज शुगर इसीलिए बोलते हैं इसको. C5H10, so O5. This is ribose and this will be found in RNA. Then if it is C5H10O4, that is 1 oxygen less at carbon number 2, so there is one oxygen is less, so then it is called, that is why it is so named deoxyribose. Deoxy means it is without oxygen, but not all, only 1 oxygen less. It is found in the DNA. So we'll do the molecular structure of this, ring structure of this. Then what is phosphate? Actually it is the ionic form of phosphoric acid. H3PO4 is the phosphoric acid, and if there is 1 hydrogen lost, so then it will be H2PO4, 1 negative charge. So it is so written like this. So P double bond, so OH, then OH, and it is O negative, right? So if it is H3PO4, then it is OH here. So this is the formula of the phosphate, ionic form. And what is the molecular form of this ribose and deoxyribose sugars? So we will do this, and so you must have done this in the +1. This is the ring structure. Then there is oxygen here. This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3 and 4. There are 5 carbons, and here at carbon number 1, so we will take the beta structure of this ribose as well as this. So there are 2 types of sugars, alpha and beta. So at this carbon number 1, so it is anomeric carbon. So there is OH here and H here. So then it is beta. If H is above and OH is below, then it is called as alpha. So now it is beta.
Then it is H and OH. So this is ribose sugar. Then it is H and OH. Then here it is H, and your fifth carbon will be outside the ring. So this is fifth carbon with OH. Yeah, so this is OH, CH2OH. So this is fifth carbon. This is ribose sugar. Now in the deoxyribose sugar, same structure is there, but at this position, at the second position, instead of there is OH, there will be the H. So this is H. One oxygen is less at this position at the carbon number 2. You have to remember this. So at the carbon number 2, instead of HOH, it is HH. That is the only difference between the ribose and deoxyribose sugar. So then the formula will change. So this is C5H10O5 and this will be C5H10O4. So now we will concentrate on the nitrogenous bases, right? So nitrogenous bases are of two types. And so then it is purines and they are called as pyrimidines. Purines and pyrimidines. So now we will do nitrogenous bases. Yeah, so nitrogenous bases which are rich in nitrogen ring structure, heterocyclic ring structure. Yeah, so they are of two types, purines and pyrimidines. So purines are 9-membered double ring structure. So one hexagonal ring and one fused with this pentagonal ring. So both these are fused here. So one hexagonal ring, 6 corners, and one pentagonal ring with 5 corners. Then this is adenine and guanine are its two types. So we'll write A and G. And at the first position, third position, 7 and 9, there will be nitrogen present. They are nitrogen rich ring structures. So 1, 3, 7 and 9. And so now we can do the structures. Adenine. So we will now complete the structure like this. Nitrogen here, nitrogen here. So this is 1 position, this is 3 position, this is 7 position and 9 position. Okay, so 1 nitrogen and third, then 7 and 9. Rest is carbons. All these are carbons. Now we will put the functional group. It is amine group at the carbon number 6. Amine group. So this is the only function group here. So then we will complete the valencies. So now you can see, so here there is double bond. So why? Because so carbon has 4 valency, we have to complete the 4 bonds of the carbon. So 1 is here, 2, 3, 4. Nitrogen has 3 valency, 3 bonds. So these are completed. Then this carbon, so we'll have hydrogen attached to it and there is double bond here, 4 bonds. This nitrogen automatically gets 3 bonds. Then this carbon, so there is double bond here. So then all the 4 bonds are complete. Then so this carbon has all the 4 bonds complete. Then this nitrogen, so we will have a double bond here. So then it is all the 3 bonds clear. Then carbon has hydrogen here and this nitrogen has hydrogen here. Then all the valencies are complete. So in this way we will complete the diagram. So adenine, right? Next is guanine. Now the similar type of structure is there, but the functional groups are 2. So at the position number 6 there is carbonyl group, C double bond O, and at the carbon number 2 there is amine group, NH2 group. Then we have to complete the valency similarly. So this nitrogen will now have the hydrogen because we cannot put double bond here. Then so carbon has already completed its 4 bonds. So therefore nitrogen will have hydrogen here and 3 bonds are completed. So then this carbon, so we'll have 4 bonds. So by having double bond here. So then this nitrogen has 3 bonds and this carbon has 4 bonds and this carbon has 4 bonds. Double bond is here. Then because of that it is completed. Then nitrogen will have 3 bonds, double bond because of double bond here. Then this carbon will have hydrogen and this nitrogen will have the hydrogen. So this is the nitrogen, this 9-number nitrogen is the reactive site. So where it can form the bonds with the other like sugars or anything else. So reactive site is nitrogen number 9. So this pentagonal ring is same here and but hexagonal ring. So we will have different functional groups. Then we come to the pyrimidids, which are 6-membered ring, only hexagonal ring is there. And there are 3 types, cytosine, thymine and uracil. In the DNA there is thymine, there is no uracil. And in the RNA there is uracil instead of thymine.
दे रिप्लेस ईच अदर, स्ट्रक्चर भी इनकी सेम ही ऑलमोस्ट, थोड़ा सा फर्क है इसीलिए ये रिप्लेस करवाते हैं। तो नाउ सी दिस इज साइटोसिन। ठीक है, सो साइटोसिन में अब हमने नंबरिंग नीचे से करनी है। तो यहाँ से नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 3 ये है। सो दो ही नाइट्रोजन है एट 1 and 3 पोजीशन, क्योंकि एक ही हेक्सागोनल रिंग है। तो दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज सो कार्बन नंबर 4, 5 and 6. Then there is amine group at this position and carbonyl group at the carbon number 2. कार्बन नंबर 4 पे amine group है and कार्बन नंबर 2 पे मतलब that is carbonyl group है। तो बाकी आपने उसी तरह से वैलेंसीज इसकी पूरी कर देनी है एंड ये स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यूरासिल पे आते हैं। ठीक है, यूरासिल में सो कार्बोनिल ग्रुप्स ही लगे हुए हैं दो, कार्बन नंबर 2 पे भी, कार्बन नंबर 4 पे भी। बाकी नाइट्रोजन ये नंबर 1 है, ये नंबर 3 है। आपने इधर से नंबरिंग करनी है। ठीक है, सो इसकी हमने यहाँ से नंबरिंग की थी ऐसे, ठीक है, और फिर इधर गए थे। तो इसमें आपने यहाँ से नंबरिंग करते हुए ऐसे आना है। ठीक है, ये बस याद रखना आपने। और इसमें यहाँ पे 5 नंबर कार्बन पे H है। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन के ये 4 बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं, इस नाइट्रोजन के भी 3 पूरे हो चुके हैं, इस कार्बन के पूरे हो चुके हैं। तो आपने इसको बॉन्ड्स के हिसाब से पूरा कर लेना है। अब आते हैं थाइमिन पे। थाइमिन, सो थाइमिन में यही सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ कार्बन नंबर 5 पे बस मिथाइल ग्रुप है। इसीलिए आपका नीट का क्वेश्चन है कि थाइमिन इज मिथाइल यूरासिल। ठीक है, इसको मिथाइल यूरासिल कह सकते हैं आप। तो ये आपकी स्ट्रक्चर्स जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस की हैं। इसके बाद अब नाइट्रोजनस बेस हो गए, पेंटो शुगर्स होगी हमारी, और फॉस्फेट हो गया। अब इनको तीनों को जोड़ के देखते हैं और कौन से बॉन्ड बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो देखो मैंने पेंटो शुगर जो है बीच में सेंटर में रखी है। ठीक है, और इसके एक तरफ नाइट्रोजनस बेस है, मतलब आउट ऑफ दैट सो प्यूरिन्स एंड पायरामिडीज 4 डीएनए के लिए, 4 ही आरएनए के लिए। एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन कॉमन है, एंड थाइमिन डीएनए में एंड यूरासिल जो है वो सिर्फ आरएनए में। तो 4 हो गए। तो उनमें से कोई एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, तो पेंटो शुगर के साथ जुड़ जाएगा। और जो बॉन्ड है इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, सो बाय कंडेंसेशन जो बनेगा बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये बनेगा नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में, इसलिए इसको नाइट्रोजन कार्बन लिंकेज भी बोला जाता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद पेंटो शुगर जो है एक तरफ जो है सो फॉस्फेट के साथ जुड़ेगी। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होएगा उसको बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड एंड इट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, सो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। दिस इज ऑल्सो बाय कंडेंसेशन विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये अब जो आपके पास स्ट्रक्चर बनी है, सो पेंटोज एंड दिस नाइट्रोजनस बेस, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। सो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। मतलब ये दोनों जो है इनको मिला के कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब जब इनके बीच में ये फॉस्फेट भी जुड़ जाता है, ठीक है, सो फॉस्फेट भी जुड़ गया, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ओनली 1, तो फिर ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड, सो दैट मीन्स कि न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है, सो देन इट इज न्यूक्लियोटाइड। सो देयरफॉर सो ये दोनों न्यूक्लियोसाइड है और ये बीच में जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग बाकी सारे भी न्यूक्लियोटाइड जो है मतलब देखेंगे कैसे बनते हैं। तो अब आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखो कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। सो आई हैव ड्रॉन द बीटा डीऑक्सी शुगर जो डीएनए की है। तो ये जो पहले बनाई थी वैसे ये बिल्कुल सेम। तो ये OH ऊपर आएगा, यहाँ पे H एंड H आएगा, ये ध्यान रखना डीऑक्सी में। और उसके बाद ये इसकी 5th कार्बन है CH2। पहले मैंने OH यहाँ पे लिखा था, अब मैंने इधर को लिख दिया क्योंकि इसने बॉन्ड बनाना है। तो ये मैंने एडेनिन बनाया है और उसकी रिएक्टिव साइड आपको याद होगी 9th थी, 9th नाइट्रोजन। तो ये वाली जो नंबर 9 वाली है, तो इसको बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे ये इसके ऊपर आ जाए। तो उसके बाद आप देखो अब कि ये जो इसका हाइड्रोजन एंड सो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ दिस बीटा डीऑक्सी शुगर, तो कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और नाइट्रोजन जो नंबर 9 की है, क्या सो उसका हाइड्रोजन, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं एंड वाटर इज रिमूव्ड। सो ये वाटर रिमूव हो गया। और अब सो ये कार्बन एंड नाइट्रोजन देखो, क्या सो नाइट्रोजन एंड कार्बन लिंकेज होगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसको अब हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, सो रब कर देते हैं और ये आपका सो एक बॉन्ड जो है बन गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। सो यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो गया, नाइट्रोजन कार्बन लिंकेज बन गई। तो ये अब न्यूक्लियोसाइड बन गया। इनके न्यूक्लियोसाइड्स के अब नाम भी होंगे। अगर एडेनिन जुड़ता है यहाँ पे, ये एडेनिन जुड़ा है
डिऑक्सी राइबो शुगर के साथ, तो इसका नाम बनेगा डिऑक्सी अडीनोसिन। एडेनिन से बन जाएगा अडीनोसिन। तो ये अभी मैं चार्ट बनाऊंगी तो उसमें करते हैं। अब इसका लिंकेज जो है फॉस्फेट के साथ दिखाते हैं। ठीक है, सो फॉस्फेट डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओ नेगेटिव एंड ओ एच। देन सो नाउ सो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन। ठीक है, सो मे बी दिस हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन। सो ये दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप डोनर भी हो सकता है हाइड्रोजन का एंड रेसिपिएंट भी हो सकता है। तो ये हमने ओ एच एंड ये एच ले लिया, तो देन वाटर इज रिमूव्ड। सो वाटर यहाँ पे रिमूव हो गया, तो इसका भी अब बॉन्ड जो है सो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। सो इट विल बी, सो वी विल रब हियर एंड a bond is formed, so between this oxygen of the phosphate and this carbon, so carbon oxygen bond आ गया। ठीक है, so carbon oxygen bond, ester bond, so this is ester bond, ester bond with the removal of water molecule, condensation। तो अब जब फॉस्फेट जुड़ गया तो ये क्या बन गया, पूरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, सो डिऑक्सी अडीनोसिन। ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन्स वन, क्योंकि एक ही फॉस्फेट जुड़ा है इसमें, तो इसलिए ये इसका न्यूक्लियोटाइड का पूरा नाम बन गया डिऑक्सी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पे राइबो शुगर होती तो फिर डिऑक्सी वर्ड हट जाएगा, अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। तो हम लोग इसके आगे डी लगा के इस तरह से स्मॉल, सो इट इज कैपिटल AMP, इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर RNA का बनता है तो अकेला ही AMP लिख देंगे, यस ओनली, सो AMP। अगर डिऑक्सी वाली शुगर है तो फिर DNA वाला तो डी लग जाएगा आगे, और नहीं तो फिर AMP बन जाएगा। तो इस तरह से ये अब क्या बोलेंगे इसका नाम, अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर द RNA, और DNA के लिए डिऑक्सी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनिलिक एसिड भी बोला जाता है, ये जो फॉस्फेट है ये इसको एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एडिनिलिक एसिड। तो ये इनके नेम्स हैं। तो अब आते हैं, ये प्यूरिन की अटैचमेंट थी, और अब पायरिमिडिन की अटैचमेंट भी देखते हैं। तो पायरिमिडिन जो है वो हमने एक बना ली, ये थाइमिन बना लिया। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड कार्बोनिल जो है, सो ग्रुप्स लगे हुए हैं। नंबरिंग आपको याद है नीचे से करनी है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे, और ये थाइमिन है। तो इसी तरह से डिऑक्सी राइबो शुगर, क्योंकि इसमें तो डिऑक्सी ही लोगे आप, क्योंकि थाइमिन तो राइबोस के साथ जुड़ता ही नहीं है, DNA RNA में तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें डिऑक्सी ही लेनी है। तो ये फॉस्फेट आ गया। तो उसी तरह से बिल्कुल सेम, तो आप ये वाला H और ये OH निकल जाएंगे, एंड देन सो व्हाट विल बी देयर, सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सो इन बिटवीन, सो दिस इज ए न्यू बॉन्ड फॉर्म, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सो इट इज डिऑक्सी थाइमिडिन। ठीक है, सो इट इज थाइमिन से बन गया थाइमिडिन। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम OH एंड H को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो सिमिलरली जैसे उसमें था, तो यहाँ पे भी एक, तो आप इसको चाहें तो इस तरह से अलग शेप भी दे सकते हैं नए बॉन्ड्स को। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचाएगा। यहाँ पे भी आप दे सकते हो थोड़ी सी टेढ़ी इस तरह से, तो शेप ईस्टर बॉन्ड। सो दिस इज ईस्टर बॉन्ड, यू हैव टू लेबल इट। तो दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये बन गया अब आपका न्यूक्लियोटाइड, एंड इसका नाम होगा डिऑक्सीथाइमिडिन, थाइमिन से थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट लगा है तो इसलिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनी, डिऑक्सी TMP। तो ये RNA में तो होता नहीं, इसलिए हम TMP तो लिख नहीं सकते, तो डिऑक्सी ही आएगा, डिऑक्सी TMP। तो ये हो गया आपका प्यूरिन वाला, पायरिमिडिन वाला न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, और ये हो गया प्यूरिन वाला। तो इसी तरह से बाकी भी आप बनाओगे। अब मैं वो चार्ट में बता देती हूँ आपको कि कैसे ये बनेंगे, बाकी स्ट्रक्चर्स जो है आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये सारे के सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जब वो राइबोस या डिऑक्सी राइबोस शुगर के साथ और फॉस्फेट के साथ जुड़ते हैं, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे या न्यूक्लियोसाइड्स पहले बनेंगे, तो उनके नेम्स कैसे होंगे वो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर ही जो है उसमें बार बार ये नेम्स आने हैं, तो यू मस्ट नो द नेम्स। तो लेट्स सी। ठीक है, सो पहले ये RNA वाले न्यूक्लियोटाइड्स जो है हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, सो ये RNA के हैं, तो एडेनिन प्लस राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीनों जुड़ गए। तो फिर क्या बना, ये दो एडेनिन एंड राइबोस मिलकर एडिनोसिन बनाएंगे, तो फॉस्फेट जुड़ गया तो मोनोफॉस्फेट, वेरी सिंपल, AMP।
देन उसके बाद गुआनिन प्लस राइबोस प्लस फॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट GMP। सिमिलरली साइटोसिन जुड़ता है तो साइटिडीन बन जाएगा। मतलब आप नेम्स में देखो, ये एडेनिन से एडिनोसिन, ग्वानिन से ग्वानोसिन, साइटोसिन से साइटिडिन, यूरासिल से यूरिडिन, यूरासिल से यूरिडिन। तो साइटिडिन मोनोफॉस्फेट CMP एंड यूरिडिन मोनोफॉस्फेट UMP। तो ये 4 हो गए RNA वाले। अब फटाफट देखते हैं DNA वाले। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है जो DNA में होंगे तो वो कौन कौन से हैं। बस एडेनिन प्लस डिऑक्सी राइबो शुगर, यहाँ पे ये फर्क आया, देखो राइबोस थी, यहाँ पे डिऑक्सी है, तो फॉस्फेट डिऑक्सी लग जाएगा। बस यही नेम्स रहेंगे, बस डिऑक्सी वर्ड आगे लगा देना है। ठीक है, सो डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी स्मॉल वाला लगा देना AMP। तो इसी तरह से डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। अब ये थाइमिन आएगा, यूरासिल नहीं आएगा यहाँ पे। तो थाइमिन से थाइमिडिन, डिऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी TMP। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब जुड़ता है, जैसे हमने पॉलीमराइजेशन शुरू में लिखा था कि 1 न्यूक्लियोटाइड देन सेकंड देन थर्ड, सो ये लॉन्ग चेन इज फॉर्म, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हाउ दे गेट लिंक्ड, ठीक है सुनाओ। सो आई हैव ड्रॉन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, दिस इज डिऑक्सी adenosine monophosphate. So adenine is there. Okay, so now you have to remember glycosidic bond. So this is glycosidic bond, and so the phosphate. Okay, so which this will have. Okay, so it is having the phosphate here. So it is O, and then so P double bond O, O negative, and OH. So this is ester bond here. So this is adenosine monophosphate. Now it has at the third carbon OH attached, right? और एक ये चीज याद रखना आपने कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो प्यूरिन्स के बीच में जब होता है तो ये याद है आपको, नाइट्रोजन 9 थी और यहाँ पे 1 थी, तो 1 and 9 लिंकेज इसको बोला जाएगा, 1-9 लिंकेज। कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड इट इज 1-9। पर यहाँ पे अगर ये थाइमिन है, पायरिमिडिन है, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन 1 जो है वो अटैच हुई थी कार्बन के साथ, 1 के साथ, तो दिस इज कॉल्ड एज 1-1 लिंकेज। ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये याद रखना आपने। सो ये कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज है एंड इट इज 1-1 लिंकेज, 1-1 कार्बन नाइट्रोजन, 1-1 लिंकेज दोनों की। और यहाँ पे 1-9 लिंकेज थी, ये कार्बन नाइट्रोजन की लिंकेज जो है वो 1-9। तो इस तरह से ये याद रखना आपने। पर अब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनके ऊपर है। अब ये दूसरा मैंने बनाया है और ये है डिऑक्सी TMP। ठीक है, सो दिस इज थाइमिन। अब हमें इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बनाई मैंने, वैसे ही T लिख दिया, यहाँ पे भी A लिख दिया। तो देन दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑफ द राइबो शुगर, H इज देयर, सो HH एट द नंबर 2 एंड HOH एट द नंबर 3 एंड H एंड CH2। सो एंड देन फॉस्फेट, जैसे यहाँ पे मैंने फॉस्फेट जोड़ा तो ये फॉस्फेट मैंने ऊपर को लिख दिया इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज ईस्टर बॉन्ड जो कंडेंसेशन हुई थी और ये O आ गया, देन P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड OH। तो ये एक हो। तो अब ये कैसे, देखो इसका OH फॉस्फेट का और इसका जो फॉस्फेट इस कार्बन का हिस्सा है, ये जो मैंने बनाया है, दिस फॉस्फेट इज पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड है। और ये जो OH है वो कार्बन नंबर 3 ऑफ दिस शुगर जो ऊपर न्यूक्लियोटाइड है उसका हिस्सा है। तो अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे एंड देन सो दिस OH and this OH and so this H so will be removed, ठीक है, in the form of water। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा एंड ए न्यू बॉन्ड, मैं थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट उसको बना देती हूँ। तो अनदर ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ये कार्बन नंबर 5 और ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 लिंक हो गए आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 नंबर कार्बन ऊपर वाले की एंड 5 नंबर कार्बन नीचे वाले की, सो थ्रू द फॉस्फेट लिंक हो गए हैं। और क्योंकि 2 बॉन्ड है, एक ये ईस्टर बॉन्ड है, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड है, और एक ये ईस्टर बॉन्ड है, ठीक है, सो 2 हो गए ईस्टर बॉन्ड। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट के थ्रू हुआ है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, इसको कहते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो ये है जो लिंकेज कह सकते हो, डाई it is linkage। So 3', 5' phosphodiester linkage or bond।
तो ये दो ईस्टर बॉन्ड्स को मिला के बोला जाता है फॉस्फोडाई ईस्टर, फॉस्फेट क्योंकि बीच में है इनके, तो इसलिए फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो ये याद रखना है, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे इंडिविजुअली ईस्टर बॉन्ड है, पर जब ये लिंकेज होती है दो न्यूक्लियोटाइड्स की तो फिर हमने इसको बोलना है सो दिस इज ये वाला, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज 3' 5' फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड और लिंकेज। तो आई थिंक ये अंडरस्टूड है। तो इसी तरह से अब ये जो कार्बन नंबर 3 ये फ्री है। अब अगर न्यूक्लियोटाइड जुड़ना है और तो वो नीचे जुड़ेगा, यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट है वहां नहीं जुड़ेगा नया, तो इट विल बी गुड। मतलब ग्रोथ अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की होनी है, ये डाई न्यूक्लियोटाइड इस टाइम बन गया, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसी तरह से और जुड़ते जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, बट ग्रोथ विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस एंड को हमारे पास ये जो चेन बनी है, तो इसके इस एंड को हम बोलेंगे 5' एंड, और जो नीचे वाला एंड है उसको बोलेंगे 3' एंड। तो ये इसकी पोलैरिटी हो गई है, ठीक है। सो दिस इज पोलैरिटी, ठीक है। सो इट इज वन एंड इज कॉल्ड एज 5' एंड द अदर एंड इज कॉल्ड एज, मतलब जहाँ पे कार्बन नंबर 5 फ्री है, कोई न्यूक्लियोटाइड ऊपर नहीं जुड़ा हुआ तो 5' है, जहाँ पे कार्बन नंबर 3 फ्री है और न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ तो 3' एंड है। तो ग्रोथ विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आगे ग्रो करेगी। तो इस तरह से कई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है बन जाएंगी। तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विल कम टुगेदर and they will run parallel to each other, and in the RNA only single, so polynucleotide chain will form the whole molecule। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने किया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की है विच इज़ कॉमन अमंग द डीएनए एंड आरएनए, दोनों तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हमने बना के देख लिए। सो वी हैव डन नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटो, शुगर एंड फॉस्फेट, देन सो उसके बाद उनके कॉम्बिनेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स वी हैव फॉर्म्ड। सो दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। तो आगे जो है हम लोग डीएनए की स्ट्रक्चर करेंगे। नाउ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।